Good evening and a very warm welcome to all of you to the sixth edition of Ahmedabad International Literature Festival. We are into the sixth edition. Fifth edition has gone digital. We could not do anything physically, but we started sixth edition with a physical opening, which happened just last week on Sunday in Ahmedabad Hotel Hyatt. We had 5 sessions. A lot of people joined. Of course, it was only for the invited guests. But we will continue with the promise to continue this sixth edition of Ahmedabad International Literature Festival whole year. Most of the times at the weekends, Saturdays and Sundays, during this time only, we'll continue this edition, and we'll close it somewhere at the end of the year, somewhere November or December. This month, particularly March, if I talk about today's session, we have very prominent women speakers, and we in March, almost whole March, we celebrate the Women's Month. Because 8th March is International Women's Day, and we celebrate almost every day of the month. In fact, for us, it is every day a Women's Day, not only March or not only 8th March or the whole March. So this program is available live on Ahmedabad International Literature Festival's Facebook page, YouTube channel, and Twitter handle. Anybody can join us by just clicking Ahmedabad International Literature Festival Facebook page. I would request all my speakers to share this broadcast to all your social media groups, your friends, your family members, so that they can watch your discussion and they can forward it to other people. We have been doing it, this Ahmedabad International Literature Festival, from 2016. So there is a small video. I would like you all to have a look of it. So you will have a fair idea what has been happening since last 5 to 6 years. After that, Swati ji will introduce all of us, and we will go to the session. Ahmedabad International Literature Festival, which aims to promote reading and writing, particularly in children and young adults, started with a bang in 2016. Mr. Umashankar Yadav, the founder-director of AILF and Icon Education Foundation, with his able and committed team, has taken the literary discourse of the city to a new height, with 3 successful annual editions of the Literature Festival. इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से उसी इक्वल प्लेटफॉर्म और उतना ही ऑनर मिलना चाहिए, वो उन्नत समाज की निशानी होती है और ये बहुत पॉजिटिव साइन है। આ પ્રક્રિયા છે તે જળ બિંદુમાંથી મોટી થવાની પ્રક્રિયા છે। AILF जैसे पहल रखी गई है, ये बहुत जरूरी है। AILF has gained widespread appreciation and popularity and has been applauded for its continuous and commendable work. Every time AILF proudly presents a collective diverse of distinguished speakers from the fields of literature, art, cinema, journalism, business, politics, academics and more, who shared their insightful opinions and compelling takes on a variety of subjects. અહીંના નાગરિકોને આર્ટ, કલ્ચર, લિટરેચર આ તમામ બાબતોમાં પણ એક મંચ મળી રહે અને કલા અને સંસ્કૃતિને પણ પ્રોત્સાહન મળે। સંસ્કૃતિ આપણી કલા એ આજની નવી પેઢી સુધી પણ પહોંચે અને એ લોકો પણ આપણી આ જે સંસ્કૃતિ છે એને ગરિમાને જાળવી રાખે તેના પ્રયાસ રૂપે અમે આ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કર્યું। A host of other activities like book launches, authors' interactions with attendees, workshops, art and craft displays are also a huge draw for people. Various contests and awards make the festival even more fascinating and lively. Cultural events of the AILF with musical evenings and engaging literary discussions are promoting literary tourism to Ahmedabad, making the city an important literature destination in the country. Ahmedabad International Literature Festival resolves to continue serving literature lovers the best of everything that the world has to offer. इनका वर्णन मिलता है। हमारा संपूर्ण साहित्य, उसका मतलब ही ये है, जो समाज का कल्याण करे, हित करे, परोपकार करे, भलाई करे, वो साहित्य है। जिस साहित्य में ये वर्णन नहीं,
तो वो साहित्य नहीं, एक कल्पना मात्र हो सकती है। Welcome back once again. Before my speakers are being introduced, I would like to introduce the introducer, Ms. Swati Bhardwaj Thakur. She has been a very prominent corporate finance manager. She's MBA in finance, dealing with a lot of social activities. Now she is taking care of her home and other activities. Swati ji, I would like you to introduce the speakers, please. Thank you so much, Uma Shankar ji. A very good evening to one and all. I welcome all of you to yet another enriching session of Ahmedabad International Literature Festival. March being the month of continued celebration of International Women's Day, let's talk about issues related to women and their empowerment. According to the dictionary, resilient means someone who is able to withstand and recover quickly from difficult conditions. How apt is this word for most women, and definitely for our accomplished speakers for today, Mrs. Vandana Yadav, Dr. Simi Mehta, and Dr. Ila Kumar. It's my pleasure to introduce to you Resilient Resources, the Enigmatic Women. Vandana Yadav ji is a Hindi poet, novelist, and a social worker. Her latest book, Zindagi Aur Maut Ke Beech, is a collection of stories revolving around life in the army. Her other books are Kitne Morche, which is a novel, a motivational book, Ab Manzil Meri Hai, collection of poems, Tum Kuch Keh Do and Kuch Keh Dete. She has also written a book for children, Sabziyon Wale Gamle. Vandana ji is a recipient of many awards for her books and social work. She has a long association with Akashvani and many newspapers and magazines. She writes on mental health, women rights, and current issues. I warmly welcome Vandana ji. Suswagatam. Our next speaker for the day is Dr. Simi Mehta. She is the CEO and editorial director of the Impact and Policy Research Institute, IMPRI, Prabhav एवं नीति अनुसंधान संस्थान. She holds a PhD in American Studies from the School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, and was a Fulbright Fellow at the Ohio State University, USA. Her areas of research include US and India's agriculture and foreign policies, international security studies, sustainable development, climate change, gender justice, urban environment, and food security. She represented India in the South Asia Connect program for the startup entrepreneurs at Nexus Startup Hub at the American Center, New Delhi, and was subsequently chosen for the 50-day pre-incubation program at the center conducted by IC2 Institute, University of Texas, Austin. I welcome you, Dr. Simi. Thank you very much. Our third eminent speaker is Dr. Ila Kumar. She has a vast experience in academics and writing. She is presently Dean Student Welfare, Chief Proctor, Professor and HOD of the Department of Computer Science and Engineering at Indira Gandhi Delhi Technical University for Women. She has visited many foreign universities to present her research papers. Her biography was included in the Asian Admirable Achievers. She has won Rashtriya Gaurav Award by IAFS Society in 2010 and Shiksha Gaurav Puraskar in 2014 and Rashtriya Shikshak Samman by the Rashtriya Shikshak Sangh in 2018. She is a member of many professional and academic bodies. She has published many research papers. She has participated as expert for course designing and written 4 books on artificial intelligence, multiple choice questions in computer science, information systems, and natural language processing. I heartily welcome Dr. Ila Kumar. Thank you. And we all know Thank you very much. Uma Shankar Yadav ji.
We all know Umashankar Yadav ji, who is the founder director of Ahmedabad International Literature Festival. He is also the managing trustee of Icon Education Foundation, which promotes literature, art, education, culture, and sports. He will be in conversation with these eminent personalities. It will be an enriching session as we will get to know their life journey, experience, and opinions. Umashankar ji, I would like you to take over from here. Thank you, Swati ji, for the kind words and elaborate introduction. We are grateful to you for your time and introducing us. As we discuss that resilience power is more in women, and it's an enigmatic personality as well of the women, if we take that way. And our topic is also something like this. I would like all of you to tell the stories, inspirational stories related to your own life when you thought that the chips are down and I don't know what to do. And during that time, your resilience, your fighting spirit, your bravery helped you, and you succeeded in that event. You succeeded from that bad time and became successful. We would like Dr. C.V. Mehta to start with, please. Thank you very much. Thank you very much. At the outset, a very good evening to everyone. And it is an absolute honor for me to be part of this esteemed panel, and most of all, the Ahmedabad International Literature Festival. So thank you so much. To respond to your questions, I have had a humble upbringing, and I have known what lack means. Especially when you are a child, it is difficult to reconcile when your parents are unable to provide, new clothes during festivals for years altogether, or are even unable to celebrate your birthdays. And especially when your cousins and your school friends, they are adorned with the latest available fashion and gifts. So that was me and my elder sister. But fortunately, for me, what came as an early realization was the cognitive understanding of happiness. And what happiness is, it comes through hard work and struggle. And what better than learning in your own home and from your own parents? So I've been encouraged and motivated by highly educated parents. My mom, for instance, holds 2 master's degrees, and works for the Department of Social Welfare as a government employee in Jharkhand. And my dad, despite utter poverty and challenges, excelled in studies and went on to become an active member of student politics in his university and an educationist later on, and today is one of the very few legislators in Jharkhand with a doctorate degree. So, as it appears, education is very extremely important for me. And my sister and I were admitted, we were lucky, to one of the best convent schools of Ranchi, Jharkhand. And both of us, in fact, my sister has been my teacher throughout my school education, and my family has taught me to be me, my own person, and to be independent. So, with all this, there has been a continuous churning, and I have committed myself to excelling in academics, and thereafter using my training to pursue evidence-based research for solving socio-economic, political, environmental challenges in India and also the world. And there has been no looking back since I co-founded IMPRI, Impact and Policy Research Institute. So that is me to begin with. Thank you so much. So, ma'am, it has been a wonderful journey from Ranchi to Delhi to Ohio to all over the world. Rather, you went to other countries and held workshops and seminars. So the journey has been wonderful. And you dreamt of this when you were very young. Just a small supplementary question before we go to other panelists. Dream has to be realistic, and certainly there has been a dream that has been actually instilled upon by my parents' life journey, and there was certainly the push to do something really good or something good for the society, not just for yourselves, but to give back to the society. So yes, and to participate, to be equal contributors in the development process. So this really has been a push towards fulfilling or giving wings to my dreams. Thank you. Yeah, so we should dream and dreams come true as Absolutely. well. Absolutely. We are going to even more difficult life women face
टू वंदना जी। वंदना जी के बारे में हम बताएं तो आप लोगों को जैसा इंट्रोडक्शन में बताया गया, शी हैज बीन एसोसिएटेड विद द आर्मी लाइफ। इन्होंने अपना जीवन अभी तक का जितना है ज़्यादातर आर्मी में गुजारा है, और आर्मी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय होता है, बहुत ही मुश्किल जगह होती है, बहुत ही मुश्किल काम होते हैं। वंदना जी, आपके जीवन में कुछ आप के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होंगी, मैं एक की तो क्या बात करूं। और सबसे पहले आपकी कहानी सुने उसके पहले, आपकी 2-3 दिन पहले ही जो आपने जिस पुस्तक का संपादन किया, और वो पुस्तक है जिंदगी और मौत के बीच, जो सैनिकों के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं, सच्ची कहानियां हैं। करीब 21 कहानियां हैं इसमें, और सैनिकों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलेंगी इसमें। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई इसके लिए। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना है जिसने आपको झकझोर के रख दिया, और आप उससे बाहर निकले, विजेता की तरह बाहर निकले। कब हुआ और कैसे हुआ? मैं शुरुआत कर आप सबसे पहले तो उमाशंकर जी आपको नमस्कार, मंच को मेरा नमस्कार, और फिर अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है मंच पर। शुरुआत से करती हूँ मैं बात अपनी शुरू कि मैं एक ऐसे परिवार की बेटी हूँ जो हरियाणा के एक बहुत अंदरूनी इलाके से संबंधित है। हरियाणा का एक जिला है महेंद्रगढ़ जिला, मैं वहाँ से हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तारीख तक अगर कहीं गर्ल्स और बॉय जो बर्थ रेट है उसमें कहीं सबसे ज़्यादा फर्क है, हाँ, तो वो महेंद्रगढ़ में है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि अपने माँ बाप की हम 2 बेटियां हैं और हम 2 ही बच्चे हैं। और आप ये देखें कि वो दौर था जब मतलब पुरुषों को जबरदस्ती उठा के नसबंदी कराई जाती थी और सब भाग दौड़ मची रहती थी। तो उस दौरान जो हरियाणा में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है जिसका हिंदी का मतलब होता है कि चारों दिशाओं पे अपना नाम लिख देना। तो मेरे पिता ने उस समय में, पापा ने अपना नसबंदी पहले ही करा लिया था मेरे होने के तुरंत बाद। तो जब आप देखें कि मेरी इंस्पिरेशन कहाँ से है, कि वो जब उस दौर में, आज मैं काफ़ी बड़ी दिखाई दे ही रही हूँ, उम्र तो महिलाएं जल्दी से बताती नहीं हैं, तो मैं अपनी उम्र नहीं बताऊंगी। तो आप देखें कि मेरे पापा ने, मम्मी ने उस समय ये डिसीजन लिया कि हमें 2 बच्चे ही चाहिए, वो बेटा हो या बेटी। जी। तो वहाँ से जो मैंने जीवन की सीख ली और आगे बढ़ती रही, बहुत से स्ट्रगल रहे लाइफ में, जब अनमैरिड थी तब भी और शादी के बाद भी। अभी का सबसे पहला जो स्ट्रगल था, 2 साल पहले अचानक मैं काम करते-करते बैठी थी, 2 मतलब 15-20 मिनट के लिए मैं उठी और मेरा दायाँ घुटना काम करना बंद हो गया। मुझे लगा शायद पैर सो गया है, डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने जो भी बताया, और यंग डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि मैम अब आप लड़खड़ा कर ही चलेंगी और दौड़ तो सकती ही नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं एक कथक डांसर रही हूँ, मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ सोशल लाइफ में भी, तो वो सब अगर कुछ भी छोड़ सकते हैं, किसी के अंदर अगर डांस है और अगर मैं चलना फिरना, मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ा शौक था। तो जैसे रोना धोना होता है एक बार के लिए, तो वो हुआ, पर मुझे ये लगा कि ये जीवन नहीं है मेरा। मैंने उससे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा आप लड़खड़ा के चलेंगी। तो मैंने कहा इसका मतलब आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं एक बात में यकीन रखती हूँ कि जहाँ परेशानी होती है वहीं उसका हल होता है। तो थोड़ी बहुत ये कि कुछ अच्छी चीज़ें खाई जाएँ, अच्छी चीज़ों से मालिश की जाए, और उसके बाद मैंने चलना शुरू किया। जो हालत ये थी कि मैं बेड से उतर के बाथरूम तक नहीं जा पाती थी। आज आप देखेंगे तो ये हैरान हो जाएँगे जानकर कि मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ती हूँ, मैं दौड़ती हूँ, भागती हूँ और मेरी जीवन बिल्कुल ठीक है, बिना किसी इलाज के। ये मेरी ज़िद थी कि मुझे चलना है। थैंक यू। आप सबका बहुत धन्यवाद। ये मेरी ज़िद थी कि जो चलना बंद हुआ है, मुझे चल के ही इसे ठीक करना होगा। मैंने बहुत धीरे-धीरे शुरू किया। वंदना जी, जो जिद होती है और एक जो जज्बा होता है, एक्चुअली जिद जज्बा से ही आता है। तो ये जज्बे की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आप क्या बोलते हो कि जेनेटिक होता है, माँ-बाप से आती, पेरेंट्स से आती, सोसाइटी से आती, या व्यक्तिगत होती है? कुछ जीन्स में भी होती होगी, मैं ये मान के चलती हूँ। बाकी सारा जो आपका दिमाग का खेल है, आप हारते अपने दिमाग से हैं, आप जीतते भी अपने ही मन से हैं। कोई और नहीं हराता आपको। हमारा अपना मन, हमारा अपना दिमाग। कोई हालात ऐसे नहीं होते जो हमें रोक दें, कोई हालात ऐसे नहीं होते जो हमें हरा दें। हम उनको इतना हावी कर लेते हैं अपने ऊपर।
अब एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ कि जब ये झांसी की बात है, मेरे मदर इन लॉ थे, वो डेथ बेड पे थे, मेरे हस्बैंड को वहाँ जाना पड़ा। मैं नौकरी भी कर रही थी, मैं वहाँ पे लोकल रेडियो पे काम करती थी, वहाँ के बाकी चैनल्स पे काम कर रही थी। फौज की अपनी ड्यूटीज तो इतनी ज़्यादा होती हैं। तो जब मेरे हस्बैंड को भेजा गया था, तो कमांडर की वाइफ ने मुझे बोला कि वंदना, आपके हस्बैंड को हमने भेज दिया है, कोई भी काम होगा आप ना नहीं कहेंगी, हम एक को ही स्पेयर कर सकते थे, तो अपने हस्बैंड की सारी ड्यूटीज आपको करनी है। अब माने कि एक दिन मैं बच्चों को लेके जा रही थी, क्योंकि यूनिट के काम से मुझे जाना था। रास्ते में जाते हुए एक्सीडेंट हो गया मेरा। बच्चों को छोड़ के मैं जा रही हूँ आगे से, जैसे वो छोटी जगहों पे जीप वगैरह प्राइवेट व्हीकल में वो लोग पैसेंजर्स को लेके जाते हैं। तो एक जीप में लोगों को लेके जा रही थी, एक जीप भरी हुई सवारियों की, और पीछे से शायद कोई आईटीओ वाले लोग आ गए और उनको पकड़ना चाह रहे होंगे। उन्होंने मेरी खड़ी हुई गाड़ी में इतनी तेज जीप से टक्कर मारी, और वो तो फिर रिवर्स किया और वो करके निकल गए। मेरे बच्चे मैंने किसी फ्रेंड के घर छोड़े हुए हैं, हस्बैंड मेरा दिल्ली में है। अब मैं क्या करूंगी? मुझे 1-2 मिनट लगा समझने में कि जिंदा हूं कि नहीं हूं। गाड़ी आगे से खत्म हो गई थी। मैंने देखा नहीं मैं जिंदा हूं, मैंने अपना हाथ हिला के देखा मैं जिंदा हूं, गाड़ी के दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैंने गाड़ी में चाबी घुमा के देखी, चाबी लगाने से गाड़ी चल गई। मैंने उसको गाड़ी को घुमाया, मैं उसे सीधा सर्विस सेंटर लेके गई। मैंने उसे बोला कि मुझे निकालो पहले, उसके बाद बात करेंगे। तो ये जो हालात हैं वो रोने धोने से नहीं होता। मतलब हमें अंदर से स्ट्रांग रहना पड़ेगा और कोई ना कोई सॉल्यूशन हर मुसीबत में निकालना पड़ेगा। हाँ, बस वो है कि हम अपना नजरिया ये बदल लें कि हमें कोई किसी और की मदद नहीं चाहिए, मेरी मदद मैं खुद करूंगी, और यहाँ से बस शुरू हो जाता सब कुछ। थैंक वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी वंदना जी। ये जज्बा हम सबको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, जिनके अंदर नहीं है। ज्यादातर लोगों के अंदर है, जो काफी ऊंचाइयां पाते हैं वो जज्बे की वजह से ही पाते हैं। डॉक्टर एला कुमार, बस एक बात खत्म करती हूँ उमाशंकर जी, कि जो विनर्स बने उनके जीवन में बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, उनके जीवन में ऐसा नहीं था कि उन्हें कभी खतरे नहीं मिले, उन्हें कभी निराशा नहीं मिली, पर उन्होंने उन सब से ऊपर निकल के विजय पाई। तो हम ये सोच लें कि हमें हारना नहीं है, बस सारी चीजें अपने फेवर में होने लगती हैं। जी, डॉक्टर एला जी, वी हैव सीन योर CV and it is of around maybe 23 pages. It's a kind of book. So many things about your life in your life has happened till now. So if I say that you tell me please one story, one inspiring story, maybe little very very less for that. But what do you think, something which has changed your life from childhood till now? Any incident which you think is very inspirational for all the other audience and change your life? थैंक यू। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। I thank Uma Shankar ji, Vandana ji, and other panel members also for giving me an opportunity to share my stories with everybody. As such, I mean, I don't consider myself to be that successful. I think if God has given me potential for anything, and to everybody, to do anything, that becomes their spiritual responsibility to fulfill that. Sometimes what happens, we take ourselves an easy way of life, but that then you are not fulfilling your spiritual responsibility. So whatever potential God has given to anybody, working on that potential, going beyond your comfort level, is responsibility of everybody. So that is my views. And then I don't consider myself that successful, because I mean, it's after all the potential given by God. As far as childhood is concerned, I belong to a ordinary medium class family, where mother and father, they are striving hard to make their children successful. So my mother was a non-working woman, and then she was much after us. As a we are 3 sisters, 1 brother, and all 4 were brought up on a equal level. So that way gender discrimination was not much there. Mother used to inspire and for academics,
But at a very young age, I was not understanding much about the life personality. The young age, till 12th or something schooling, I straight away went to Roorkee, which later on university then, and later on converted to IIT. But by that time, I was not understanding much about life, because the life was very unidirectional, just bookish, I can say. After all, after that, when I came to Delhi in 90, after completing my graduation and masters also, daily life was very difficult, in the sense, to that mindset what was my mind at that time. Then time management was not required, it was old, the digital era was not started, it was altogether a very bookish type of conventional type of pattern of studies. But so many challenges after marriage and after say Delhi working. What kept me going is, of course, there were some official responsibilities that everybody needs to fulfill. If in you are in academics, then academics has much more dimensions. You are in a daily basis with students, then guiding them, then taking some mentorships. So at one time, and the Delhi also has the cultural shock also, everybody has their own mindset and everything. So at one time I was completely lost. What kept me going is, I had a habit of reading some beautiful quotes or some philosophical level, Mm. keeping my philosophical level high. तो Yes. आइंस्टीन का एक कोट है that really changed my life. Einstein says that with whichever mindset any problem gets is there, originates, with that mindset it cannot be solved. Mm. इसका हिंदी हिंदी फिलॉसफी में भी है, ना प्रश्न है ना उत्तर है, बुद्धि का विकास है. क्या बात. So मैडम अगर आप sometimes कुछ we हिंदी are में भी caught up in our. कुछ आप हिंदी में भी जी अगर आप हाँ, बात जी करेंगी तो अच्छा है. जी. जी हाँ, जरूर जरूर. हिंदी में हमारे घर से भी फिलोसफिकल लेवल सबका अच्छा था. फादर मेरे टीचिंग में थे, तो हम लोग हिंदी लिटरेचर बहुत पढ़ते रहते थे. तो कभी बचपन में कभी किसी से कुछ अच्छी बात मिल गई, कभी कुछ अच्छी बात मिल गई. फिलोसफिकल लेवल हमेशा अच्छा और हाई रखने की कोशिश सिखाई गई थी बचपन से. तो हिंदी फिलोसफी भी कहती है कि ना प्रश्न है ना उत्तर है, बुद्धि का विकास है. सो व्हेनेवर वी आर एंटरिंग इन प्रॉब्लम्स, तो हम लोगों को उसको प्रश्न और उत्तर में उलझना नहीं चाहिए. हमें अपना थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल दिमाग का हाई रख के, वो अपने आप सॉल्यूशन हमारी आत्मा से, हमारे दिमाग से, हमारे बौद्धिक क्षमताओं के हिसाब से निकल आएगा. भगवान ने हम सबको ये ताकत दी है. जी. उस ताकत को बनाए रखना हमारा काम है. और वो हम तब बनाए रख सकते हैं जबकि हम बहुत छोटी चीजों में कंफर्ट लेवल ना ढूंढ के, उसमें उतनी ही मेहनत लगा के, अगर हम उस इंटेलेक्चुअल लेवल तक अपने माइंड को डेवलप कर पाते हैं, तो हर चीज का आंसर भगवान ने हमें ताकत दी है, हमारे में आ जाएगा. जी. तो फिर पीएचडी करना तो हमारी प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है. एकेडमिक्स मैंने ज्वाइन करा था. पीएचडी करना हमारे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हमें करी हमने. उसके बाद में लेकिन देन मैनेजिंग योर इंटेलेक्चुअल लेवल विल ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. In a daily Yes. interaction with society, you are dealing with your maid and other neighbors who may not be that intellectually high. तो वो राइट. सब एक करना, वो हमारा पार्ट ऑफ उसको द आप कैसे मैनेज फिलोसफी. उसको आप कैसे मैनेज करते हो मैम? मैनेज क्योंकि करने में ये ऑफ कोर्स. समस्या करीब-करीब सब लोगों, बहुत लोगों की है ये समस्या. Yes, yes. My individual methodology to do it. मैं स्पीकिंग ट्री, सबसे पहली बात तो हमेशा इस बात में बिलीव करती हूँ कि जो भगवान ने हमें स्पिरिचुअल लेवल दिया है. देखिए, एक चीज होती है इंटेलिजेंस कोशेंट, वो जो हम आपस में समझते रहते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, सभी इंटेलिजेंट है. आपस में यस. समझते हैं जी. इंटेलिजेंट है. दैट इज मेजर्ड बाय अ आईक्यू व्हिच इज इंटेलिजेंट कोशेंट. उसके यस. ऊपर इंटेलिजेंस में हम इमोशंस का उतना कंसीडरेशन नहीं करते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग हैं. हम लोगों को डेली रूटीन में इमोशंस का बहुत असर पड़ता है हमारी साइकोलॉजी पर. जी. तो उसको इनकॉर्पोरेट करके अब तो टेक्नोलॉजी ने भी और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, उसने इमोशनल कोशेंट उसको मॉडिफाई करके करा है.
जहाँ पे कि हम इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस में इमोशंस को भी ऐड करते हैं। तो हमारे में, इंसान में और रोबोट में यही फर्क है। जी। उसके और आपने भी तो आगे सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी में जी भी हाँ, रिसर्च बहुत सारे किए हैं और जी हाँ, जी हाँ, इन जी हाँ। कंप्यूटर जब हमने, मैं थोड़ी सी अपनी पुरानी बात पूरी करूं। जी, 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 प्लीज़। इमोशनल कोशेंट के आगे भी भगवान ने हम लोगों को जो क्षमताएं दी हैं, कई बार हम लोग अपनी तरफ से ही उन चीजों में और चीजों में उलझ के और अपना टाइम पास करके हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं, पर उन लेवल्स और उस लेवल की वर्किंग को नहीं अटेन करते हैं। उसके लिए स्पिरिचुअल कोशेंट अब एक नया टर्म आ गया है। People are working on spiritual quotient. Meaning hereby is we should identify our potential and tap it and work it on the full capacity. That's our responsibility. राइट। तो जब हमने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, तो कंप्यूटर साइंस में तो इट इज मोर ऑफ अ डिजिटल वर्ल्ड। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं काफी मोटिवेट हुई, इसलिए क्योंकि डिजिटल के अलावा कंप्यूटर जब हम उस तरीके के डिसीजन मेकिंग में यूज कर पाए जिसमें कि ह्यूमन लाइक डिसीजंस हों, तो फिर मैंने एआई में पीएचडी भी करी। और जी। जब पीएचडी हो गई तो अपने विचार औरों से शेयर करने के मतलब आइडिया से एक किताब भी लिखी 2007 में, दैट इज स्टिल रनिंग वेल, इट इज थ्रू आईए राइट। इंटरनेशनल पब्लिकेशन। उसके बाद मेरा अपना रिसर्च भी आगे बढ़ता रहा। एक एक चीज मुझे मेरे वाइस चांसलर ने, वी आर इन अ यूनिवर्सिटी सिस्टम, मेरे वाइस चांसलर ने कुछ एक टाइम पे, मैं थोड़ा रिलक्टेंट थी अपने मन के अंदर ये मान के कि मैंने काफी अचीव कर लिया है, तो दो दो चीजें जो मेरे लाइफ को बहुत इफेक्ट करी हैं। एक, माई मदर्स सेइंग, शी ऑलवेज यूज्ड टू से कि अगर हम छोटी सफलता में खुश हो जाएंगे तो बड़ी सफलता तक नहीं पहुंचेंगे। क्या बात! आई बहुत रिपीट, बढ़िया। अगर हम छोटी सफलता में खुश हो जाएंगे तो बड़ी सफलता तक नहीं पहुंचेंगे। जी, तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसा हो सकता है कि जब हमने पीएचडी कर ली तो हम अपने मन में सोचें कि हमें सर्विस के हिसाब से तो सारी एलिजिबिलिटी पूरी हो गई और हमें सब कुछ मिल जाएगा जो मिल सकता है। जी। लेकिन हम उस पोटेंशियल को जो हम भगवान के यहाँ से लाए हैं, उसको नहीं हम उस लेवल पे काम करते, अगर और आगे बढ़ के मैं किताब ना लिखती। तो मेरी मदर का कहना मैं उसको हमेशा दिमाग में रखती हूँ कि अगर हम छोटी सफलता में खुश हो जाएंगे तो बड़ी सफलता तक नहीं पहुंचेंगे। देयर इज वर्ल्ड ओपन, जी। skies are open and we should reach to the heights which God has made us for. और मैम दूसरी या एक बस और कहना जी, जी, चाहूंगी, जी, प्लीज़। मैं जॉब में थी और कुछ डिजिटल चीजों को सीखने में रिलक्टेंट थी, मन के अंदर ये मान के कि बहुत कुछ कर लिया है, कभी कभार हेल्थ इश्यूज और थक जाते हैं। तो मेरे वाइस चांसलर ने, एक बार कुछ पूछने चली गई तो वाइस चांसलर ने मुझे थोड़ा सा डांट के बोला कि कम ऑन, यू आर एन आईआईटीएन हैज नो राइट टू से नो टू एनीथिंग, लर्न क्या बात! योरसेल्फ। वो थोड़ा सा डांट भी थी उनकी और मुझे बुरा सा भी लगा, पर मैंने उस बात को दिल से लगा लिया। आई डू नॉट आस्क एनीथिंग, आई लर्न माई सेल्फ अबाउट एनीथिंग। तो ये एक दो चीजें ऐसी होती है इंसान की पर्सनल लाइफ में घटती रहती हैं। जी, बहुत बढ़िया आपने बात किया डॉक्टर एला। इनफैक्ट ये जो बात आपने बताई वाइस चांसलर की डांट वाली, ये हमें लगता है हमें हर अपने जीवन में रोज ये ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। आपकी ही बात नहीं, बड़े-बड़े ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या बड़े-बड़े लोग हैं, एक्चुअली वो एक कॉम्प्लेसेंसी में चले जाते हैं। तो उनको कोई yes, ना कोई yes, देयर शुड बी that यस, depends to इट शुड anybody's बी else. रिमाइंडेड या How do you take? After all, it is यस individual's growth. So that depends और how do we या take anybody's यस। और दूसरा ये कि हमें हमने आपके जैसे आई मीन जो हाई आईक्यू के लोग हैं, डांट, वो लोग जिसको जो भी वो लोग हमेशा यही बताते हैं कि हम अच्छे-अच्छे कोट्स पढ़ते रहते हैं, जैसे आपने आइंस्टीन का कोट पढ़ा था। रोज़ 2-4 कोट पढ़ते रहते हैं, जिससे क्या है कि लाइफ that में is कोई very helpful. कॉम्प्लेसेंसी ना आने पाए और हम आगे इंस्पायर रहें रोज़ की लाइफ के लिए। हम और भी बहुत सारे बहुत ही Yes. सीरियस डिस्कशंस पे आने वाले हैं। अब इंडिविजुअल पार्ट से हम लोग बाहर निकल के, मैं बहुत दिन पहले पढ़ रहा था, 1-2 कॉलम, बहुत बड़े कॉलमनिस्ट हैं, वीमेन कॉलमनिस्ट अपने देश के, वो ये बोल रहे हैं कि वीमेन्स पर्सनैलिटी, वीमेन्स फिजिक, वीमेन्स नॉलेज, वीमेन्स रेजिलियंस, वीमेन्स वीमेन्स एनर्जी रादर एनर्जी एंड
पावर टू एंड्योर एनीथिंग, पावर टू बेयर एनीथिंग इतनी ज्यादा होती है. यस मैम, आई एम जस्ट कमिंग राइट. तो वो जो so the best and brightest part of being a woman, why you must be, I mean, what message you will give Dr. Simi and Dr. Ella first, in fact, to women कि आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि this is something like very unique and you should be very proud. तो क्या सबसे brightest part क्या होता है being a woman? Uma Shankar ji, let me tell you, when if you become a spiritual person, I am a regular reader of Speaking Tree. If you become a spiritual person, ये कभी भी घमंड की चीज नहीं है. जो आप प्राउड कहते हैं, फिर अगर आप एक मेंटल काफी बढ़ा लेते हैं तो प्राउड नहीं होता है. इट इज अ जर्नी ऑफ लाइफ. इट इज अ जर्नी. अब प्राउड से मेरा मतलब ये था कि आप अपने आप को कभी कम ना महसूस करें. मेरा मतलब ये प्राउड का मतलब यहाँ बस केवल इतना है. And I am proud of being a faculty as well as dean, of course, of a women university. Presently, I am working. It is a technical university for women, and we, in a daily manner, we always encounter with the girls student, and proudly, I can tell everybody that girls are really talented. We teach them that the capabilities and the caliber is gender indiscriminate. एक टाइम था, मैं अपने टाइम में काफी स्क्यूड रेशियो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से निकली हुई हूँ. बहुत कम गर्ल्स पढ़ती थी हमारे टाइम पे, एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सी दिस विमेन यूनिवर्सिटी एंड ऑल गर्ल्स एंड रियल टैलेंट इन द गर्ल्स. So in a daily manner, we tell everybody that girls are very, very talented. इस बात का मैं प्राउड करती हूँ कि लड़कियां बहुत अच्छी भी निकल रही हैं. कई सारे पैरामीटर्स जो कि हम डेली रूटीन में देखते हैं, जिसमें कि रेजिलियंस, परसिवरेंस, कंप्लायंस एंड अ क्रिएटिविटी, राइट, भगवान ने एज कंपेयर टू मेल फीमेल्स को बहुत ज्यादा दी है, एबंडेंस में दी है. हम तो खाली बच्चों को ये बताते हैं अपने कि आप उसको नर्चर कर लीजिए. कीपिंग योर निगेटिव्स. कभी आपको अगर ऐसा लगे कि मैं बहुत लो स्पिरिट में हूँ, जस्ट रिमेम्बर गॉड. थोड़ा सा उनको ना मेडिटेशन या इस टाइप से. मैं स्पीकिंग ट्री पढ़ती रहती हूँ. स्पीकिंग ट्री. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर सिमी, अगर इफ आई कम टू यू, आपको जीवन में कभी भी, क्योंकि मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात किया और लड़कियों से बात किया, तो आपको कभी भी जीवन में ऐसा लगा कि नहीं, मैं लड़की नहीं होती तो अच्छा था? ऐसा कभी, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे लड़की होने की वजह से ये समस्याएं हुई, या लड़की नहीं होती तो अच्छा था, मुझे भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी की है. ये मैं ब्लंटली इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वीमेन का सेशन है और हम वीमेन्स को एम्पावर कर रहे हैं कि आपको ये नहीं सोचना है कि हमें लड़की, कभी मन में आपके आया या कि नहीं होते तो अच्छा था, हमें ये समस्या से नहीं गुजरना पड़ता, या आपने हमेशा अपने आप को एम्पावर्ड समझा और दैट वाज द बेस्ट पार्ट? और बेस्ट पार्ट है तो क्यों है? Certainly, नहीं, fortunately ऐसा फीलिंग कभी भी नहीं आया. एंड इसके लिए भी मैं अपना जो इसका श्रेय है, the credit for this goes to my parents for bringing us up in a totally unbiased environment. And I am proud of being a woman, and I wish every other woman, every other girl has this sense of pride in themselves. Because वो जननी है, they are progenitors, they are equal partners in the creation of humanity. And the resilience which you were talking about, they have demonstrated since time immemorial, and वो continue करती हैं, and they, despite several challenges, that is an inspiration for me. It fills me with an awe. So women do not settle for less or anything that is ordinary. In fact, there is a sense of extraordinary patience and determination to do their best in everything that they put their hands to. So in doing so, as the session is wonderfully titled enigmatic, they become enigmatic individuals. I would rather say first enigmatic individuals, homemakers, entrepreneurs, leaders, even politicians, and of course all the traditional roles they fulfill, like daughters, wives, mothers, etc. And they actually have a continuous quest and struggle for peace, love, happiness, and वो जो fearlessness है, that fearlessness and the ability to multitask,
so many tasks that they have to fulfill, and this actually situates them to a very high pedestal. तो उनका जो लेवल है वो अपने आप ही बहुत ऊपर ऊंचा उठ जाता है. And of course, I agree with Professor Kumar about the astonishing values and virtues that they have, the creativity that they have to remain focused and to pursue their dreams and ambitions despite all challenges, as we have heard from Miss Vandana. So challenges hain, lekin fir bhi the zeal, the enthusiasm to be, to do something. So there is no reason why women should not be proud of themselves. And yes, of course, gestures of appreciation, ki haan, acha hai, ya you are doing a good work, from families, from peers, from your co-workers, it is actually the icing on the cake. सोने पे सुहागा अगर थोड़ा कुछ appreciation मिलता है. But definitely, the women have the fullest ability to have their own backs. They do not really totally depend upon such appreciation, but certainly wo thoda so certainly I am proud to be a woman, and I have never faced any such feelings, fortunately, that I should not have been born a girl. So तो आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि यू ओन द थिंग्स, आप जो एक होता है कि नहीं हम ओन करते हैं इसको, आई एम ओनिंग द सोसाइटी, आई एम ओनिंग द कंट्री, आई एम ओनिंग द ऑफिस, आई एम ओनिंग हाउस, ये जो ओनिंग की फीलिंग आती है ये वीमेन में ज्यादा होती है या मेन में ज्यादा होती है? एक्चुअली ओनरशिप बहुत इट आई फील बीइंग अ वुमन, वो सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, लेकिन it is, I feel that it comes to women because उन्होंने अगर उसके ऊपर अपना योगदान दिया है तो they have more sense of ownership. This is what I have done. I have been able to do it, and therefore all of you are party to it, are utilizing or harnessing the benefits out of it. But please take care of it because I have been a contributor towards its development. तो वो जो ownership है, वो sense of ownership, I believe that is true for women, and वो अपना credibility, that credibility needs to be established through this ownership. तो credits अगर उनको मिले, appreciation उनको मिले, तो you just see the whole world is in front of them to build a beautiful world. थैंक यू सो मच फॉर द आंसर. इनफैक्ट ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में इसलिए आया कि कई बार आई मे बी रॉन्ग, मेन होते हैं मैं समाज को बदलना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, वीमेन भी होती हैं ऐसा कहती हैं, लेकिन जो ये जो ओनरशिप ऑफ रिवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग, ये होता है, ये भी इस ओनरशिप की मैं बात कर रहा था कि ये ऐसा ज्यादा होता है क्या, पर उसके बारे में हम आगे आएंगे. वंदना जी से बात करते हैं. वंदना जी, आपने अपनी शुरुआत में भी बताया कि आप 2 बहनें थी और आपकी भी 2 बेटियां ही हैं, तो कभी आपको ऐसा मुझे लगता नहीं नेचुरली कोई फील हुआ होगा कि महिला या लड़की होने का कभी कुछ किसी भी तरह की कोई फीलिंग आई हो? आपने बताया महेंद्रगढ़ में सेक्स रेशियो मेन वीमेन का बहुत ही कम है, इनफैक्ट इंडिया का सबसे कम है, तो आपको कुछ लगा कभी या यू हैव बीन जस्ट नेचुरली सब ठीक ठाक ही रहा? जैसा मैंने कहा कि उस जगह से मैं हूँ जहाँ पे लड़के और लड़कियों का अनुपात सबसे कम है. वहाँ पे जब पापा हमें लेके जाते थे, मैं बिल्कुल गांव देहात से हूँ, मैं ऐसे गांव से हूँ जहाँ पे पानी भी हम लोग खींच के लेके आते थे. आप मुझे देख के वो अंदाज नहीं लगा पाएंगे, हम कुएं से पानी भर के लाते थे और डे टू डे का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करते थे. शहरों में रहते थे पर गाँव छुट्टियों में तो जाते ही थे. तो जब देहात में जाते थे जहाँ पे लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ज़्यादा मतलब अगर खाना पीना भी है तो उसकी घी की रोटी होगी, बेटी की रोटियां सूखी होंगी. मैं उस माहौल में रहते हुए जहाँ आसपास ये सब देखती थी, और मेरे पापा बड़े प्राउड से कहा करते थे कि हम दोनों बहनों के लिए कि ये दोनों मेरी आंखें हैं. तो मुझे वो माहौल नहीं मिला, न हमने अपने बच्चों को वो माहौल दिया, क्योंकि हमें बच्चे चाहिए थे, तो बच्चे बेटा या बेटी में कोई फर्क नहीं था हमारे लिए. और सच्ची बात तो ये है कि समाज को जोड़ने वाली, देश को जोड़ने वाली और सभ्यता को बनाने वाली महिलाएं हैं. आज जब न्यूक्लियर फैमिलीज भी हैं तो आदमी चाहे कितना भी बिजी रहे, देखिए पहले औरतें घर में रहती थी, आज तो वो दोहरी भूमिका में है, नौकरियां भी कर रही हैं, घर भी चला रही हैं. बल्कि मैं महिलाओं के लिए हमेशा से ये कहती रही हूँ कि वो वर्किंग वुमेन या हाउस वाइफ ये ऐसा कुछ नहीं है, वो मल्टीटास्कर्स हैं.
जैसा अभी आपसे एक डॉक्टर क्योंकि आपके बीच में ऐसा रोक रहा हूँ क्योंकि आप कवि हैं, लेखक भी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो आपको जो ये लेखक वर्ग है, जो कविता और साहित्यकार वर्ग है, उसमें कभी महिला होने का फायदा या नुकसान हुआ? मैं वैसे नहीं देखती। यहाँ भी इस तरह की बातें उठती हैं और क्योंकि मैं नॉन लिटरेचर वाले बैकग्राउंड से हूँ कि मैं अभी तक तो मेरा कोई यहाँ मेंटोर नहीं है, न मुझे कोई हाथ पकड़ के लेके जा रहा है कि आओ तुम्हें मैं वो मंच दूँ या आओ तुम्हें मैं इस सिंहासन का रास्ता दिखाऊँ। मैं अपना रास्ता खुद तय कर रही हूँ। पर मैं एक बात मान के चलती हूँ कि आसमान बहुत, बहुत, बहुत विस्तृत है, विशाल है। इसमें कितने भी सितारे हो सकते हैं, आप सितारा बने तो। आप ताके तो तभी जाएँगे ना जब आप सितारा बनेंगे। आपको कोई अपनी क्या बात! जगह क्यों देगा? अपनी जगह बहुत तलाश बढ़िया। लीजिए, पर उतनी काबिलियत अपने अंदर हो कि आप सितारा बन सकें। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने सैनिक जीवन जिया है पति के साथ, वो सेना में हैं और मैं उनके साथ-साथ ऐसी-ऐसी जगहों पे रही, जहाँ की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी इन जगहों को मैं करीब से देखूँगी। और वहाँ पे देश की लगभग हर तरह की आबादी से जुड़े हुए लोग आए। मैंने उन महिलाओं के जीवन को भी बहुत करीब से देखा, जो शुरू में तो लगता था कि वो अपने महिला होने पे कुछ परेशान हैं, कुछ दुखी हैं। फिर जैसे-जैसे वो मिलते थे, हम लोग आपस में बातें करते थे, मैं उन्हें हमेशा एक ही बात कहती थी कि महिला होना किस्मत की बात है। क्या बात! अगर हिंदू धर्म में हम बिलीव करते हैं तो कुछ हज़ारों जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म तो मिल जाता है, पर आपने न जाने कितने सत्कर्म किए होंगे तभी आपको महिला का जन्म मिलता है। जी, मैं इस बात बहुत पे बढ़िया ध्यान बात नहीं आपने देती। कही, बहुत बढ़िया बात आपने कही। हाँ, एक्चुअली क्योंकि वो ये बातें हमें जन-जन तक पहुँचाना है, घर-घर तक पहुँचाना है और हाँ। बच्चियों तक तो ज़रूर पहुँचाना है, जिससे कि जी। किसी भी तरह की ये बातें ना हों। वंदना जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात, बहुत सटीक बातें कहीं। हमारे पास क्या कुछ और भी सब्जेक्ट है जिनमें हम आप लोगों के व्यूज़ जानना चाहेंगे, इसलिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़े शॉर्ट आंसर्स रखना क्योंकि इतनी बढ़िया बातें हैं, आप लोगों के पास इतने अच्छे व्यूज़ हैं। थोड़ा-थोड़ा सटीक बातें करके जिससे कि हम ज़्यादा कवर कर सकें। जी। तो अब हम अभी एक क्योंकि डॉक्टर एला जी स्पिरिचुअल पर्सन हैं और बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की बहुत अच्छी बात की। हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे आना चाहते हैं जिसमें एक हमें ब्लिसफुलनेस की ज़रूरत होती है। हमें एक तो होता है कि चलिए करियर में हमें सबको मेन-वुमेन सबके लिए रहता है कि हमें कुछ बनना है, ये करना है, उसके बाद हमें अपनी फुलफिलमेंट हो जाता है, ब्लिसफुलनेस की तरफ जाना है। तो महिलाओं में ऑन एन एवरेज जनरली क्या उनको कभी अपने बीच में जैसे मेन जनरली मैंने कहते हुए सुना कि मैं 35 साल तक 35 साल की उम्र के बाद में रिटायरमेंट की बात आजकल के मेन ऐसा सोचने लगे कि 35 से 45 के बीच में मुझे रिटायरमेंट लेना है और फिर हम ज़रा अलग तरह की दुनिया जिएँगे। तो महिलाओं में क्योंकि उनको घर का जो काम ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये जीवन भर मुझे करते रहना पड़ेगा। मेन तो बोलते हैं मैं तो हिमालय पे चला जाऊँगा, कुछ भी करूँगा। तो महिलाओं में कभी 35 साल की उम्र के बाद या 40 या 45 में ऐसी फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि नहीं आई हैव डन माय वर्क चाहे वो हाउसवाइफ है चाहे करियर वुमन है तो उनको ऐसा फुलफिलमेंट का कुछ या अटेनमेंट जिसको आप बोलते हैं ज्ञान विजडम या जीवन से संन्यास लेने जैसी जो बात होती है वो आता है एला जी आप शायद बहुत अच्छा बता पाएंगे क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप स्पीकिंग ट्री पढ़ती हैं जी, जी। आपने स्पिरिचुअल को मतलब आप थोड़ा-सा नेगेटिविटी से बिल्कुल मत लीजिए। नहीं इट विल बिल्कुल नहीं गिव वो यू वो नहीं था मेरा मतलब वो बिल्कुल मतलब नहीं था मेरा मतलब केवल जी। ये है कि स्पिरिचुअलिटी में जनरली हाँ, लोग बाग फुलफिल्ड महसूस करने लगते हैं अपने आप को मैं बताती जी हूँ। जी स्पिरिचुअल के अलावा मैं हिंदू फिलॉसफी कंप्यूटर साइंस से हूँ, लेकिन फिर भी हिंदू फिलॉसफी और वैदिक लिटरेचर में मेरा बहुत इंटरेस्ट है और जी मैंने अपनी किताब में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़ा वेदास से लिखा हुआ है। तो हमारे वेदास ने बहुत ज़्यादा हायर एंड लिटरेचर पहले ही दिया है, हम लोगों ने भुला दिया है। लेकिन मैं उनमें से हूँ जो कि उसको पढ़ के उस पे प्राउड भी फील करती हूँ, अपनी बुक में मैंने लिखा भी है। जी जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि वो कंटेनमेंट वाली बात है, जी ऐसा होता है कि शायद हम 8-10 साल के नौकरी के बाद में और एक अपने सिनेरियो में ये है कि नौकरी मिल गई तो लाइफ अच्छी कट गई तो हम लोग अपना सैटिस्फाई हो जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में जो हम लोगों को ओपन एंडेड साइकोलॉजी रखनी चाहिए और जिस काम के लिए ओपन एंडेड साइकोलॉजिकली बिल्कुल सेटल हो कि मुझे पूरा एला जी के सिग्नल में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है विल कम बैक टू हर सिमी जी अगर हम आपके पास आए तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि एज ए यंग वुमन आपको क्या लगता है कि क्रिएटिव चीज मुझे को लाइफ में ओपन एंडेड बनाएंगे
तो हमेशा हम खुश रहेंगे। सृजन बहुत सेटिस्फेक्शन देता है, और जो हमारा गॉसिप है और जो हमारे लाइफ के छोटे से पैसे का फुलफिलमेंट है, वो एक कंफर्टेबल लाइफ के बाद में खत्म हो जाता है। माने अगर हम कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं तो फिर हमें किस चीज के लिए जिंदा रहना चाहिए, उसके Professor Ella, we'll come back to you because there is some problem with the signal. We'll come back to you, मैम। सेकेंड राउंड में हम आ रहे हैं। सिमी जी, अगर आप इसी बात को आगे बढ़ाएं इला जी की, तो आप इसको कैसे लेते हैं? Well, I am not yet 35, तो लेकिन मेरा ऐसा कोई विचार भी नहीं है to retire early on, or I mean I've just started, so ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए until and the feeling of retirement ये होना चाहिए when you are mentally, if you are mentally active, you cannot retire from anything that is active. तो ये अपने 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 मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, एंड वी शुड ऑलवेज कीप द साइकिल ऑफ आवर ब्रेन्स लुब्रिकेटेड, ताकि जो भी कुछ भी करें तो उसको पूरी तरह अच्छी तरीके से करें. So I think I would rest my case over here, and I have no such plans. And of course, taking rest is important. Resting or taking a break is important. Sitting back and analyzing कि क्या आपने अभी तक पाया है, or what you want to do. Taking inspirations from several other successful people, or even from the lessons that you are learning, the challenges that are teaching you lessons. So that is a good thing, but certainly we should rest, but I don't plan on such an early retirement. No, yeah, the question was, वंदना जी आपके पास आते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही है कि हमें एक सर्टेन टाइम के बाद जो लगता है कि नहीं, मेन जैसे सोचने लगते हैं वैसे वीमेन भी सोचने लगती है, कि वो सोच की बात कर रहे हैं, और एक सर्टेन टाइम के बाद कि हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसका मतलब केवल इतना ही है कि ये कमाना था जीवन में, ये करना था, अभी हमें रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ दूसरी तरह का जीवन जीना है। बस क्वेश्चन ऐसा है। और वंदना जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप दूसरी बात करते हैं आपसे कि जैसे मेन के केस में, क्योंकि मैं मैन हूं तो मैं उस तरह से ज्यादा क्वेश्चन रखता हूं, इसलिए आप लोग दूसरी तरह से सोचना उसको, कि मेन के केस में ये होता है कि वो बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मैं समाज में या देश के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहां भी जो भी काम कर रहे हैं, लाइक सिमी जी सोचेंगे कि लोग हमें सोचें कि हमने इम्प्री की स्थापना कर दी और एक इतिहास में हमारा नाम जाए कि आई शुड बी नोन फॉर द फाउंडर ऑफ इम्प्री रादर। तो ऐसी जो बातें होती हैं, मैं बहुत सारी महिलाओं को जानता हूं, वो इस तरह की इच्छाएं रखती हैं, और बहुत सारी ऐसी है जो नहीं भी रखती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप जब एक सर्टेन टाइम के बाद, हमें ऐसा टाइम आता है जब हम सोचने लगते हैं, हम सभी बातें कर रहे हैं, हम कमाने की बात भी कर रहे हैं, एम्बिशंस की बात कर रहे हैं, और एक ये भी बात करना चाहते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद, 70 साल की उम्र के आसपास हम किस तरह से जाने जाएं, आप किस तरह से जाना चाहोगे, और ये इच्छाएं रखती हैं कि नहीं? हमें इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि हम यंग एज में, मिडिल एज में ये इच्छा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, या हम ज्यादा अटके रहते हैं एज ए वुमन। सबसे पहले तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हमारी सोच हमारे बचपन से जुड़ी होती है, हमारे संस्कारों से जुड़ी होती है। जो सबसे पहली बात थी, मैं पिछली बात पे एक बार लौटना चाहती हूँ, कि जहाँ पे बात चल रही थी महिलाओं और पुरुषों की सोच के बीच में कि क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। 35 या 45 या 55 या 65, बिलीव मी उमाशंकर जी, महिलाओं के हिस्से में तो एक इतवार भी नहीं आता। हमें तो संडे मेरा क्वेश्चन ऐसा ही था, मेरा क्वेश्चन इसीलिए और ज्यादा काम करना होता है। और एक बात है कि प्रकृति कभी सांस लेना बंद नहीं करती, पेड़ कभी ऑक्सीजन देना बंद नहीं करते, नदी बहना बंद नहीं करती। प्रकृति ने आराम करना सिखाया ही नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लें और फिर चल पड़े काम पे, थकना नहीं है। और जो दूसरा आपका सवाल था, उस पे मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने अंदर संभावनाएं तलाशिए। ऐसा कोई समय नहीं है जहां रुक जाना है, थक जाना है और लौट जाना है। नहीं, आगे बढ़ना है। हाँ, आपके क्षेत्र अलग हो सकते हैं। अब मैं कहना तो नहीं चाहिए मुझे, पर फिर भी कह रही हूँ, महिलाएं अपने आप को एक उम्र के बाद बच्चों, परिवार में समेट लेती हैं कि बस यही मेरा परिवार है, यही मेरा जीवन है। जो भी आपका धर्म है, एक परमात्मा, एक ईश्वरीय शक्ति तो हम सब के लिए है, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो उसने आपको सिर्फ इसलिए नहीं भेजा धरती पे, बहुत सारे उद्देश्य देकर भेजा। कोई एम था, वो एम तलाशिए, अपने अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं ढूंढिए और उन पे काम करिए।
आपका जीवन आपके परिवार का है, ठीक है, पर समाज से आपने इतना लिया, उसको क्या देंगे? आप याद रखें कि जब तक जी रहे हैं आपने बहुत कुछ लिया है समाज से, देश से और प्रकृति से, और इन्हें वापस लौटाना है। अपने आप को लिमिटेड मत रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच इला जी। हम आपके पास वापस आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के कंटेम्प्रेरी समाज के लिए जो है वो ये है कि हम रोज सुनते हैं यंग महिलाएं, यंग लड़कियां, इवन टीनेजर्स, समटाइम्स यंग अडल्ट्स, they come under a kind of distress, particularly young girls, under distress, under depression, under negativity, and under low feeling. तो आप एज ए सक्सेसफुल करियर वुमन, और आप इतना सारी जो पढ़ाई भी किए हैं, इतने सारे काम करते रहते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमें जो लो फीलिंग होती है, आप कैसे उसको मैनेज करते हो? देखिए, लो फीलिंग होना हर मनुष्य के अंदर आने वाला है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, चाहे जिस एज का है। कुछ लोग होते हैं उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उनको उसके टूल्स मालूम है, और कुछ लोग होते हैं उसको नहीं मैनेज कर पाते हैं तो वो परेशानी में आ जाते हैं। तो आप यंग बच्चों को, पर्टिकुलरली गर्ल्स को क्या संदेश देना चाहेंगी कि आप नेगेटिविटी में मत जाइए? डिप्रेशन एक ऐसा, आजकल तो लोग फैशनेबल वर्ड भी बोलने लगे हैं कि किसी भी बात में लोग सोचते हैं कि हम डिप्रेशन में चले गए, 2-3 दिन तक बात नहीं करेंगे या परेशान रहेंगे। इस वर्ड को हमें निकालना है अगर यंग गर्ल्स, यंग वीमेन के दिमाग से, तो और आप कैसे मैनेज करती हैं नेगेटिविटी को? जी जी जी। जहाँ तक निगेटिविटी या मतलब लो स्पिरिट बेसिकली इसका ताल्लुक है, मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि कई बार हम अपने टारगेट्स अपनी क्षमताओं से ज्यादा सेट कर लेते हैं। जी। जैसे कि हमें जो बीटेक की लड़कियां मिलती हैं, स्पेशली उस लेवल पे कट थ्रोट कंपटीशन या पैरिटी लेवल कंपटीशन वो इतना ज्यादा कर लेती हैं कि अपनी क्षमताओं से ज्यादा के टारगेट सेट कर लेती हैं, फिर उसको फुलफिल करने के लिए कई बार वो गलत रास्ते पे है कि वो गलत रास्ता हम नहीं जाना चाहिए हमें। तो मेरा ये कहना है सबसे कि अपनी क्षमताओं को पहचान के, अपना इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन सब करके आप अपने समय को इस तरीके से मैनेज कर लें कि जो आपके टारगेट्स हैं, टारगेट्स छोटे कर लें। कहने से मेरा मतलब है, अगर किसी से बीटेक की पढ़ाई नहीं संभल रही है तो ज्यादा फिर डांस, ड्रामेटिक्स वगैरह में ना जाएं। ओपन वर्ड है, हो सकता है कि आप जिससे कंपटीशन कर रहे हो उसकी क्षमता कुछ और हो। आप ब्लाइंड कंपटीशन ना करिए, अपनी क्षमताओं को पहचान के जितने टारगेट्स आपके रीच में रहते हैं उतने ही टारगेट सेट करिए, और उनको फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें। जी, थैंक यू वेरी मच। सिमी जी, 2-3 बातें और करनी है, टाइम कम है इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी-जल्दी कर लें। सिमी जी, आपसे मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। एक जो हमारे ज़हन में आता है और हमारे सब लोगों के दिमाग में ये आता है कि एक तो होता है कि जो महिलाएँ बहुत ही हाई पोज़ीशन पे हैं, चाहे वो अपनी फैमिली की वजह से, चाहे अपने खुद के मेहनत की वजह से। एक महिलाएँ हैं जो क्लर्क हैं या छोटे जॉब में हैं या छोटे काम करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको भी, जो छोटे काम करने वाली महिलाएँ हैं, बाबू की नौकरी है या छोटी नौकरियां हैं, उनको भी लोग बाग उतने ही सम्मान की तरह से देखते हैं, या केवल कि वो पैसे कमाने के लिए, ठीक है घर का खर्चा चलता है, वैसा करें? क्योंकि वो डोमिनेट करने की पोजीशन में कई बार जब नहीं होती हैं, आप यंग वुमन हैं, आप बहुत सारे मिलते रहते हैं, आपके साथ के लोग हैं, आपकी जैसी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन बच्चियों को वो अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाती हैं? वो क्या सोचती हैं जीवन के बारे में? या कोई भी जॉब मिल जाना इटसेल्फ इज ए काइंड ऑफ अचीवमेंट? Well, it really depends upon person to person. Pehla to, it is about, firstly, I would like to say that attainment, any sort of attainment, whether it is academic or employment wise, वो आपका personal attainment है, and it is actually satisfying you. अगर आप उसमें contented हैं, तो अगर आप उससे satisfied हैं, तो बाकी नौकरी छोटा है या बड़ा है, it really doesn't matter. और सामने वाला क्या सोच रहा है या क्या सोच रही हैं, इट शुड नॉट मैटर। और इस तरीके का ट्रेनिंग, अपने सेल्फ ट्रेनिंग, माइंड को सेल्फ ट्रेन करना चाहिए और फैमिली को हेल्प करना चाहिए, एंड इवन एजुकेशन को भी उसी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए कि
नहीं है कि you are a civil servant or you are the prime minister of the country, then only you have achieved something. जो arrival होता है, जो बोलते हैं yes finally I have arrived, तो वो जो sense of contentment है, even if I am a janitor and I am fulfilling all my roles, कि मेरा limited capacity है और मैं वही कर रही हूँ ताकि I am looking after my family and different needs हैं, तो I am a successful person even in that position of a janitor. So it shouldn't matter कि आपका status क्या है, in terms of your employment. और basically I am a strong proponent of empowerment. तो अगर ये mental empowerment अगर हो, जो personal level पे हो, और even economic और political empowerment, I'm trained in political science, so fundamentally I wish and I hope that women, चाहे वो जिस भी position में हो, चाहे किसी भी वो नौकरी में हो, वो काम कर रही है, नहीं कर रही है, different fields are there. तो एक इक्वल पार्टनरशिप का जो recognition है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान ने जो दिया है, that we are all equal, there is equality of all genders. If that is instilled and that leads to sharing of power or sharing of decision making authority, so that would really make the difference. And for me, if you ask me personally, there is enormous scope. You have your entire world in front of you. और जैसे हम आगे आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, because I do policy studies, and as we are moving towards creating and building a new India, we should aim to realize these objectives of empowerment, of equality, of justice for everybody, as we are moving towards 100 years of our independence. So if that satisfies your question, and I would just like to add, there is one very a couplet that really encourages me all the time, and it might inspire others as well, that आपकी तरक्की से सारे लोग खुश नहीं होते हैं, right? So it goes like this: नाराज इतने हैं हमारे तरक्की से कुछ लोग, पांव रखते हैं हम जहां वो शरर रखते हैं, शरर is अंगारे. So with this, आप माया एंजेलो जो है, ग्रेट माया एंजेलो, उन्होंने कहा था कि आप सारे इवेंट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आप मैन हो, वुमन हो, एनीबॉडी, बट यू कैन डिसाइड कि उसके सामने आपको घुटने नहीं टेकना है. तो my encouragement comes from this, and it is like जब लगा कि कोहरा घना, कर्म पथ पर, I'll just repeat, जब लगा कि कोहरा घना है, कर्म पथ पर अब मेरा रुकना मना है. So if that goes as an inspiration, it should really, thank you. You have made many followers. I think आपकी जो नई बुक आ रही है वो कुछ फिलोसफी से भी जुड़ी हो सकती है. आपने बोला कि आप नई किताब लिखने वाली, किसके बारे में लिखने वाली हैं? Well, this is under process. वो okay. Well, this is okay. Yeah, let us have the draft first, then we can share. Okay. Hopefully that will inspire millions. Yes, thank you. वंदना जी, हम लोग करीब अपने सेशन के अंत में आए हैं, और हम आप सब लोगों से एक क्वेश्चन यही दोहराएंगे. आप सब लोगों को यही बताना है कि हम सब लोग एक समय ऐसा रहता है कि 20 साल बाद या 25 साल बाद हम आप कौन सी बात से आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी आज के 20 साल बाद, जब आप शांति से बैठेंगी कि हमने जीवन में ये किया? मैं ये देखना चाहूंगी अपने आप को, और ये याद करते हुए देखना चाहूंगी कि मेरी वजह से किस किस के चेहरे पे स्माइल आई, और मैंने किसको अपनी जगह जहां तक मैं पहुंची हूँ हाथ पकड़ के मैं वहां तक लेके आ सकी. यानी मैं अपनी सफलता में किस किस को भागीदार बना पाती हूँ, और किसी और की सफलता में मैं किसी को रास्ता दिखा पाती हूँ. तो वो पल जो होंगे वो मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत और यादगार पल होंगे. क्या बात, बहुत बढ़िया. और डॉक्टर एला जी हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए. जैसे अभी डॉक्टर सिमी बता रही थी, तो मैं ये कहूंगी हमेशा सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहें. इनकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे. तो उतनी ही सकारात्मकता से आगे बढ़ते रहें, और बस सब कुछ अपना है. जी, थैंक यू वेरी मच. प्रोफेसर एला जी, आप किस बात से खुश होंगी आने वाले 20 इयर्स
के बाद में जब बैठेंगी तो। हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि आज हम वो कर लें जब जो हमें 20 साल बाद खुशियां देंगे, या 25 साल बाद, या 40 साल बाद, या 50 साल बाद। तो इससे क्या लोगों को एक रास्ता 20 साल बाद का भी दिखेगा। मेरा क्वेश्चन का केवल यही पर्पज है कि आज जी my sincere appeal to all would be, and I would be really happy to see all girls and females, I should say, the citizens of India, digitally literate. I have seen many, being from the computer science from a long area, operations of these digital devices, the life will become seriously smooth for handling day-to-day applications. So I sincerely appeal to all females, rather citizens of India, to be digitally literate. It may not relate to directly to your profession. It may not. And of course, in the lines of the say emphasis from the Honorable Prime Minister of a digital India, I want to see India the national top level. So थैंक यू सो मच। वी हैव वन मोर सेगमेंट। इनफैक्ट हमें तो मन कर रहा है कि हम आप लोगों से बात करते ही रहें, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही, इतनी इंस्पिरेशन मिल रही कि हम 1-2 घंटे और बातें करें। लेकिन बहुत ज़्यादा बातें करने से हमारा जो वीडियो है ये बहुत उसकी रीच कम हो जाएगी, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हमारे ट्विटर हैंडल पे भी। कभी भी जब मन करे लोग देख सकते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर एवर। सिमी जी, आप 1 या 2 सेंटेंस में जो यंग वीमेन हैं उनको इंस्पायर करने के लिए क्या सलाह देंगी, क्या मैसेज देंगी? Yes, so to inspire or to send my message across to everybody, women, men, everybody, is that we should count our blessings. We should really cherish the moments that we spend with our family, because only when we are away we realize how precious these moments are. And मिशेल ओबामा का एक अभी रिसेंटली एक किताब आया था, बिकमिंग। तो हम लोग हमेशा पूछते हैं अपने बच्चों से और एनीबडी, चिल्ड्रन जिससे भी मिलते हैं, क्या बनना है आपको बड़े होके, और व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। बट ये जो ग्रो अप है, इट इज नॉट फाइनाइट, इट इज नॉट ओनली अ सर्टेन एज दैट यू रीच कि ग्रो अप वहां खत्म हो जाता है। सो वी शुड रादर बी आस्किंग व्हाट आर यू बिकमिंग। अगर ऐसा क्वेश्चन हम लोग करें, सारे लोग करें, तो वी have this opportunity for adaptation, for possibilities for adjustments to become better persons, and this would actually eventually lead to a wonderful building a wonderful world order. So agar ye thoda sa bhi anybody is provoked or anybody is inspired by this, agar ek person bhi hai whether to bring about some changes, positive changes in the society, in your own person, in your family, in society, in global politics, in national politics, it would be a victory for me. So with this I would rest my case. Thank you. It was a very powerful message, Dr. Simi. We are so inspired with this. वंदना जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी यंग वीमेन के लिए, यंग गर्ल्स के लिए? कोई सीमाएं कहीं नहीं होती जब तक आप तय ना करना चाहें कि आपकी सीमा क्या है। तो अपने लिए इतना विशाल, इतना विस्तृत कैनवास रखें, और आप जो करना चाहती हैं याद रखें यही जीवन है और इसी में कर लेना है। तो कभी भी ना थकने के लिए चलें और ना रुकने के लिए चलें, और सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार आगे बढ़ें और सफलताओं को छू लें। आप लड़कियां हैं, आप पे बहुत सारी नजरें रहती हैं परिवार की, चाहे वो मायका है या ससुराल है, और आपको तोला जाता है। उन नजरों से अपने आप को दूर रखें, उन सीमाओं में ना बंधें और लगातार आगे बढ़ें। आप में वो एनर्जी है जो सब कुछ कर सकती है। जी, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर एला, आप क्या कहेंगी यंग वीमेन, मेन सबके लिए? जी, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जिनको आप
अगर सफल आज की डेट में आप देख रहे हैं, वो भी साधारण जर्नी आपकी तरह ही क्रॉस करे हैं। खाली इतना ही उन्होंने करा है कि हमेशा ही अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज पे काम किया है। तो ऐसा किसी को देख के बहुत वो सफल है, उसका रास्ता एडॉप्ट करने की कोशिश के बजाय आप अपना रास्ता खुद बनाइए। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, यू कैन नॉट क्रॉस द जर्नी unless you become the journey itself. I actually keep on reading good thoughts from beautiful quotes from everywhere. So Gautam Buddha has said, you cannot cross the journey unless you become the journey itself. कहने का मतलब है कि आप किसी और की सक्सेस स्टोरी से वो आपको रास्ता नहीं मिलेगा जो उन्होंने क्रॉस करा है, आप अपना रास्ता खुद बनाएं। धन्यवाद। क्या बात है, wonderful. We have been joined by Miss Swati Bhardwaj Thakur as well. I would like to have some message from you as well, because you have been a introducer, you have been a listener, silent listener. What kind of message you would like? You have been a career successful woman in your life. What kind of message? Because जो मैं बात कर रहा था, ये स्वाति जी ने कॉर्पोरेट फाइनेंस थी, शी MBA फाइनेंस, वो सब छोड़ के अभी सोशल वर्क कर रहे हैं, इसलिए भी क्वेश्चन वो निकल रहे थे बहुत सारे, कि एक समय के बाद इनको ऐसा लगने लगा कि नहीं, आई एम लिविंग कॉर्पोरेट लाइफ, आई एम गोइंग टू लिव माय ओन। आप बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस है? जिंदगी के एक सेकेंड, स्वाति जी अनम्यूट करें। जी जी जी, यस प्लीज गो। तो कई बार ये अनुभव आप करते हैं कि आपको रास्ते में चलते चलते आपकी जरूरतें और आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। जैसे वंदना जी कह रही थी, अपनी सीमाओं को पहचानते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ने का बिल्कुल तनक भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को कई और विधाओं में अपने आप को मैंने ढाल लिया है और अपनी सारी चीजें वहां पर मुझे मिलता है। जैसे एक ये प्लेटफॉर्म जैसे उमा शंकर जी ने प्रोवाइड किया है, तो कुछ अपना जो लिटरेचर और आर्ट के लिए है वो इसमें हो जाता है यूटिलाइज। तो खुशियों में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ोतरी ही है, कोई अफसोस नहीं, कोई वो नहीं, बढ़ोतरी है। देखिए, जिंदगी जीने के लिए एक ही जिंदगी है, जो मन में आता है वो करना चाहिए। जो खुशियां हैं उनको पाने की हर भरकस कोशिश हर इंसान को करना चाहिए। खुशियों की परिभाषाएं हम सब लोगों की अलग अलग हो सकती हैं। जी, तो आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग गर्ल्स के लिए जो पढ़ाई कर रही हैं, जो आपकी तरह MBA फाइनेंस कर रही हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहती हैं, उसके बाद फिर दूसरा कुछ, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, उन्हें जरूर आगे बढ़ना चाहिए। अपने आप को इंडिपेंडेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस देता है। और देखिए, पढ़ाई किसी भी लेवल पे कहीं पर भी आपकी व्यर्थ नहीं जाती है। आप उसको नौकरी, जहाँ पे आप एक पैसे कमाने का जरिया हो या जिंदगी जीने का तरीका हो, पढ़ाई आपको हमेशा फायदा ही करेगी। तो पढ़ना भी चाहिए, नौकरियां भी करना चाहिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना भी बहुत जरूरी है। और फिर अपनी खुशियों को देखते हुए आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हर व्यक्ति का एक पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। उस पर कोई आपको एक फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि हाँ ये सब करूंगा, मैं इतनी देर नौकरी करके इतना कमा लूं और इतना टाइम फैमिली के लिए निकाल लूं तो ही मैं खुश होऊंगा। ये हर एक के लिए अपना अपना अलग हो सकता है। क्या बात है, कितनी बढ़िया बात कही। और कुछ आप पैनलिस्ट के लिए बोलना चाहेंगी? हाँ, आज के सेशन के बारे में पूरी चर्चा सुनी, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इला जी का अपना वेद और पुराणों के प्रति इतना गहरा उनका रुझान है। जनरली लोग समझते हैं साइंस के साथ इतना नहीं होता। बहुत बढ़िया। सिमी जी ने भी अपना पूरा बताया, व्यक्तित्व कैसे उभरार के उन्होंने आगे आई हैं, और अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है उन्हें। वंदना जी, आपको भी सुन के बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सार्थक चर्चा है और बहुत ही अच्छा संचालन आपने उमा शंकर जी किया। तो पूरा ही सार्थक सा सेशन रहा। थैंक यू सो मच। मेरा मन तो करता है कि हम और कंटिन्यू करें, जैसा मैंने पहले बताया कि वी कैन कंटिन्यू डिस्कसिंग। वी हैव सच ए लर्नेड वीमेन विद अस। हमारे पास इतने ज्ञान के लोग बैठे हुए हैं कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अनुभवी और बहुत ही मतलब जिनके अपने बिल्कुल क्लियर थॉट प्रोसेस है कि किसको कैसा और ये इम्पोर्टेंट बात आप कही आपने, कि सब क्लियर थॉट प्रोसेस के हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो पूरा पता है। कर रहे हैं, करेक्ट जी। तो अब हम इसी बात को लेके इस सेशन को विराम देते हैं। ये सेशन अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के फेसबुक पेज
यूट्यूब चैनल और ट्विटर हैंडल पे लाइव प्रसारित हो रहा था और ये हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। मैं अपने सारे दर्शकों का, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन ले सकूं, कोई अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा देर नहीं हो रही हो, तो एक क्वेश्चन का जवाब, मल्लिका जी ने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे थे, एक क्वेश्चन अगर आप लोग दे पाए आंसर तो ठीक है, नहीं तो फिर वी कैन क्लोज इट, बिकॉज देवर सम वेरी लॉट ऑफ ऑडियंस वर देयर जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। देखिए जैसे ये हैं, कुछ और बहुत सारे हैं हमारे ऑडियंस जिन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की। हमें बीच बीच में कमेंट दिखाता भी रहता था, पर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर बातें हो चुकी हैं जो क्वेश्चंस में दिए हैं, इसलिए हम अब ज्यादा उसमें समय नहीं गंवाएंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया, सारे दर्शकों का शुक्रिया, सभी सपोर्टर्स का शुक्रिया, और फिर हम किसी न किसी प्रोग्राम में मिलेंगे। इस आशा के साथ आज विदा लेते हैं। गुड नाइट। धन्यवाद उमाशंकर जी, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर। धन्यवाद। अहमदाबाद लिटरेचर